panel discussion, and we are honored to have Sir Farooq and Ma'am Ikra Mushtaq as a panelist who will guide us through both theoretical and practical aspects, and their experiences will help us to understand how to begin and grow a career in taxation cooperation. So, without further delay, let's begin our session by inviting our panelists to share their valuable insights with us. I warmly welcome to the all participants as well as speakers. I will just ask few questions to the panelists, and anybody can both of them answer. So, am I audible to the panelists? Yeah, you are. You can start with the questions, Fahim. My first question towards the panel is that who is not required to register in the income tax system and who is exempt from registration? Okay, that I would say कि Farooq will be able to answer like more critically, insightfully, because I'm just not a tax law person. So Farooq, to you, please. Thank you, Ikra. Thank you, Maheen, for giving me the opportunity to speak pertinent to those questions which are, very hot questions for every law student, every lawyer, every tax law consultant or a tax lawyer who is required to register himself in income tax. So I'll be bilingual because most of uh, the audience is comfortable in Urdu. So इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को अगर आप खोलते हैं और उसके सेक्शन 115 पे जाते हैं यानी कि 115 दैट विल टेल यू अ पर्सन हु इज माइनर द विडो they are exempted from income tax practically theoretically they are exempted but practically if you go into for example आप जाते हैं एक घर परचेज करते हैं और उस पे सेलर और परचेजर को टैक्स पड़ता है दैट इज कॉल्ड टू 65C एंड 265K इफ आई एम नॉट रॉन्ग अब इसमें होता ये है कि अब दोनों ने टैक्स जमा करवाना दैट इज एडजस्टेबल थिंग बट द मोमेंट आप इसको जब प्रैक्टिकलिटी में जाते हैं तो दोनों पार्टीज अपना टैक्स सबमिट करवाती हैं एंड ऑफ द डे होता ये है कि यू कैन क्लेम दैट थिंग एज एडजस्टेड और उसकी आपने रिफंड क्लेम करनी होती है आपका रिफंड हर टैक्स कंप्यूटेशन के लास्ट में आपको शो हो रहा होता है और वो हर साल को आप रिफंड जो है वो आप कैरी फॉरवर्ड करके उसे क्लेम कर सकते हैं सो प्रैक्टिकली everyone has to register its business itself into tax regime under section 181 I believe इसका एक फॉर्म होता है you have to file that form that is pertinent to registration I'm sure you guys must have gone through the tax law अपने courses में वैसे भी out of curiosity हम खोल के जब पढ़ते होते हैं books में तो that is section 181 मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि उसमें जाएं जाके अभी खोल के देखें we have a lot of big books we have written law और वो उसको हम go through कर लेते होते हैं I'll I'll just give you the spirit of the thing 115 says widows minors they are not required to uh, uh, get the registration from FBR but in practical you should get yourself registered as a filer, as a registered person. So I hope that this answers in both ways. Yes, exactly, sir. It's much easier. So, moving towards my next question. To what extent do the memorandum and article of association act as a constitutional charter of the company, and how are conflicts with them resolved?
Hello. First of all, just a basic query. कि जो questions हम ले रहे हैं, what is the criteria? Like, what is the threshold या criteria you have chose to ask questions? Just to get an insight, please. If you can tell. Are Um, these from students या association ने खुद decide किया था जो आपका board है कि हम ये questions लेंगे और picked by some members online? किस तरह से आपने pick किए? Ma'am, अच्छा, we have Farooq here. तो Farooq, I have a bit छोटा सा suggestion कि let's not take theoretical question to be exact. जैसे the question कि memorandum और article कितना constitutional value होता है उस company के formation में, that is like too theoretical. और ये जो है ये बच्चे किसी भी किताब में पढ़ के या गूगल सर्च करके they can know. लेट्स टेक क्वेश्चंस सब्जेक्टिव जो होते हैं जिसका कोई रिटन क्वेश्चन हम जिसका कोई टू बी एग्जैक्ट आंसर हमें एटलीस्ट ऑनलाइन नहीं मिलता है, वो सिर्फ आपको काम करने के बाद एक्सपीरियंस करने के बाद एक्सपर्ट होने के बाद आता है. जैसे वन क्वेश्चन कुड बी जैसे एन एग्जांपल के जब आपने आपका मेमोरेंडम है और उसमें आपने 2-3 प्रिंसिपल लाइंस देने हैं, सो व्हाट वुड यू डू? ये इस या व्हाट whether you can do it or not, इसका आंसर तो शायद आपको ऑनलाइन मिल जाए, बट व्हाट्स द वैल्यू यू शुड डू और यू शुड नॉट, ये इसका जवाब शायद हमें ऑनलाइन ना मिल सके, कंपनी लॉ पढ़ के समझ ना आ सके. सो अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस लें तो दैट वुड बी मोर फ्रूटफुल इफ यू अग्री, subject to Farouk's consent. Fine with me, Ikra. Fine with me. सो अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका तो मैं आंसर कर देती हूँ कि जो मेमोरेंडम है दैट इज द कोर कॉन्स्टिट्यूशन. इट लिस्ट डाउन 5 बेसिक थिंग्स अबाउट अ कंपनी. फर्स्ट इज नेम, सेकंड इज द एरिया ऑफ बिजनेस, थर्ड इज कि कितने मेंबर्स होंगे उसके अंदर, शेयर होल्डर्स होंगे टू बी एग्जैक्ट, प्रिंसिपल उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा. सो इट गिव्स ब्रॉडर स्ट्रक्चर आपको. जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बेसिकली बताता है कि अच्छा ये आपने करना है. उसके बाद जो उसकी थोड़ी नेटी ग्रिटीज है, प्रोसीजरल चीज़ें, उसके लिए सेपरेट लेजिस्लेशन है. तो वो जो सेपरेट लेजिस्लेशन होती है उसके बाद जो हमें डिटेल चाहिए होती है वो हमें आर्टिकल प्रोवाइड करता है. कितनी मीटिंग होंगी साल में, कितनी बार होंगी, डायरेक्टर्स कैसे इलेक्ट होंगे, कितने होंगे. तो ये सब हमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बता रहे होते हैं. all right. Um, Moving towards my third question to the panelists. The third question is, what is the actual difference between a statutory audit, cost audit under the Company Act, and paid audit? Can you please repeat the question? Yeah, sure. The question is that what is the actual difference between a statutory audit and cost audit under the Companies Act? There is no distinction of audit under Companies Act. आपने audit कराना होता है. There is no such thing called statutory or cost audit. Maybe कोई बहुत specialized field के लिए आपको कराना पड़ता हो. But we do have like types. Quarterly कराना है, half yearly कराना है, yearly कराना है, आने audit कराना है. और उसके लिए set principles होते हैं internationally, which we called International Financial IFRS reporting standards. उनके अकॉर्डिंग कराना होता है. सो या ये होता है. Okay. Ma'am and sir, basically ये एक request थी on behalf of our participants
You should give us like a practical demo on a company registration and filing of sales tax, income tax, and withholding tax returns. Can you guide us how to deal with actually with clients practically? So इसमें I would like to like answer that first कि let's not go into that abhi. That is like a very detailed thing to handle. Practical demo देना. हाँ, अगर कोई सिनेरियो है आप लोगों के पास, लाइक आई एम ओपन टू स्टूडेंट्स, कोई सिनेरियो है तो आप प्लीज वो सिनेरियो हमें बताएं. कोई क्रिटिकल सिनेरियो है, हम उस सिनेरियो को ब्रेक डाउन करने में आपका हेल्प कर सकते हैं. उसको लेके प्रैक्टिकल अनोमलीज या ट्रिगरिंग पॉइंट्स आपको बता सकते हैं, बट इस तरह से बताना इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट अनलेस देयर समथिंग टू बी एडेड फ्रॉम टेक साइड. Ma'am, actually there is no specific scenario. Uh, आप with the help of any example के through अगर आप guide कर सकें. अच्छा, लेट्स डू If वन थिंग. आई हैव वन आइडिया कि तब तक फारूक और मैं छोटा छोटा 5 मिनट का एक कुछ ओवरव्यू टाइप देंगे what we have from our experience since we are coming from careers in law वाली चीज. If he has something to say from his experiences, career trajectory that you want to share with the students, आप वो बताएं, कुछ मैं बता दूंगी. तब तक students अपने questions जो हैं scenario based, not bookish, please, no bookish questions, वो आप लिस्ट डाउन करें चैट बॉक्स में, और फिर उनमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मॉडरेटर कैन सेलेक्ट एंड आस्क अस. क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है, जो खुद गूगल सर्च की जा सकती है, इट विल बी जस्ट लाइक टू redundant to answer those things. So meanwhile, in 10 minutes when we go like buy our things, just for brief I think the best one is session arrange हो सकता है दूसरा, तो practical insight में से उसमें दी जाए. your voice was too distorted. Are we going by it or not? ठीक है. Farooq, I would request you कि please, since I believe you are the senior, so if you can start like with your things that you want कि बच्चों को बताऊं कि जो मुश्किलें आ सकती हैं या आने वाली हैं, जिनको अवॉइड किया जा सकता है. क्योंकि आई थिंक लीगल प्रोफेशन इज द मोस्टली लाइक अनसर्टेनिटी इसमें ज़्यादा होती है. वी डोंट नो वेयर वी विल लैंड. Thank you, Ikra, for putting me in this discussion because, acha, let me be very honest with you guys. You can find a number of videos on YouTube, on, even the portal of the relevant regulator. FBR की वेबसाइट पे भी आपको उस पे काफी वीडियोस वगैरह मिल जाते हैं कि हाउ टू फाइल अ टैक्स रिटर्न. एंड आई बिलीव मिस समरा एंड मिस्टर हसीब, they have taken you guys through the doorsteps of the tax law, and they must have told you how to file tax returns and these kind of things. अच्छा, होता पता है क्या है, हम सब चीजें देख के रिटर्न्स फाइल करना शुरू कर देते हैं. लेट इट बी स्टैट्यूटरी रिटर्न्स ऑफ एसईसीपी और एफबीआर, या फिर उसकी सेल्स टैक्स की कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह हो, उसके बाद उसकी कंप्लाइंस ईयर वाइज या उसकी मंथली कंप्लाइंस आ जाती हैं, कुछ उनकी क्वार्टर एनुअल कंप्लाइंस आ जाती हैं, जिसे विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स वगैरह कहते हैं. आपको काफी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी. लॉ आपने पढ़ लिया, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे वो चोक कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने एक सैलरी को सारे का सारा एक ब्लॉक में डाल दिया है,
और मतलब एक उसका रेलिवेंट पोर्शन रेलिवेंट सेक्शन है उसमें डाल दिया है रिटर्न फाइल करते वक्त, एंड नाउ द टैक्स व्हिच हैज बीन डिडक्टेड with which has been withholded by the employer or any withholding agent होता उसमें ये है कि वो फिर जो है ना अक्सर औकात उसमें आ जाता है कि ये टैक्स कम कटा हुआ है और उस तरह से। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि वहाँ पे आपको किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस करना है, आपने किस तरह अलाउंसेस को मेंशन करना है, आपने किस तरीके से उन चीज़ों को लेके चलना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऐसा कोई इशू आ जाता है जिसमें कोई आपको प्योरली उससे कह लें कि जी मैथ वाला बंदा या टैक्स कंसल्टेंट या जिसे कहते हैं कि बी कॉमर टाइप बंदे का कोई क्वेश्चन हो, उसे कैसे लेके चलना है, वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है, उसका आंसर करना डिफरेंट है। लीगल क्वेश्चन का आंसर करना डिफरेंट है। प्रैक्टिकल जो चीजें आप पूछ रहे हैं, यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियोस इफ यू वांट मी टू टेक यू थ्रू द रजिस्ट्रेशन एंड अदर थिंग्स, आई एम हियर, we can do that thing, we can have a separate session for that। उसमें आपको मैं डिटेल्स में बता सकता हूँ कि एससीसीपी की स्टैट्यूटरी रिटर्न्स कैसे लेके चलनी है और दूसरे मामला कैसे लेके चलने हैं। आई कैन टेक यू थ्रू ईच एंड एवरीथिंग। आपने बस मेरे से क्वेश्चन पूछना है, जो क्वेश्चन आप लोगों को वाकई में जिसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नजर में आए, क्या ये ऐसा कुछ हो सकता है। इवन आई एम रेडी टू आंसर यू थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एज वेल, लेकिन वो प्रैक्टिकल चीजें ऐसी हैं, आई बिलीव कुछ लोग आप में से they must have gone through different registrations, different law chambers, different practices के उस तरह से उनके मामला चल रहे होंगे टैक्स के कॉर्पोरेट की। मैं आपको बेसिकली उस पॉइंट से आपको केटर करना चाह रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिकली कोई इशू ना आए। आई बिलीव लॉ तो सब लोग पढ़ लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली जो चीज़ें आप वो मेरे से पूछें। आई होप मॉडरेटर भी अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को। तक हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन पिछले सेशन से आई वुड लाइक टू कंटिन्यू डिस्कशन जहाँ से हमने ब्रेक डाउन किया था। इट वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम ईशा आबिद एंड अनदर स्टूडेंट के हाउ टू नेविगेट, आपको क्या अच्छा लगेगा करने में आप once you are graduated. You don't know. I was telling them that I used to hate corporate law because of the course I took at my precious university. It was like बहुत कंपनी लॉ और टैक्स लॉ दोनों मैंने बहुत बुरे पढ़े थे वहाँ पे, एंड आई यूज टू हेट बोथ। टैक्स लॉ वाला तो अभी भी चल रहा है, उस तरफ तो मैं जाती भी नहीं हूँ, बट सिंस कंपनी लॉ मेरी मजबूरी थी, आई यूज लाइक वहीं पे मैं लैंड की हूँ। सो आई रियलाइज कि अच्छा इतना बुरी चीज़ नहीं होती, बट नाउ आई रियली सी माई सेल्फ उसी में ग्रो करने को। सो नो वन रियलाइजेज अपने लॉ स्कूल में या राइट आफ्टर लॉ स्कूल के वो कहाँ लैंड करेंगे, या कहाँ उनको लैंड करना अच्छा लगेगा, या कहाँ उनकी ग्रोथ होगी, या कहाँ उनकी अर्निंग अच्छी होगी, या कहाँ पे नाम और इज्जत ज़्यादा होगा। यू डोंट। हाउ यू विल फिगर इट आउट? बाय एक्सप्लोरिंग दोज प्लेसेस। अब अगर हम उनको 3-4 बड़े बड़े कैटेगरीज में डिवाइड कर लें, फॉर एग्जांपल एक में लॉ फर्म के साथ, ये सब आपने एक्सप्लोर करना है राइट आफ्टर ग्रेजुएशन या विद इन जो आपका समर ब्रेक होता है, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी है समर ब्रेक्स की। और जो लोग ग्रेजुएट कर चुके हैं, प्लीज डू नॉट वरी, देयर इज नथिंग, ये जो कहते हैं ना लेट होने वाला फिनोमेना, दैट डज नॉट अप्लाई हेयर, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 साल आपको सीनियर जो होता है वो बिना स्टाइपेंड के वो आपसे काम ले रहे होते हैं। तो इट्स बेटर कि आप अपने करियर को एक्सप्लोर करें। सो या 3-4 बेसिक कैटेगरीज में अपने आप को डिवाइड करें। एक में थोड़ा गवर्नमेंट सेक्टर का लूँगा। बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप्स आती हैं इस साल, तो बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप्स आती हैं, आई थी। मैंने कोई लाइक 50 इंटर्नशिप्स देखी हैं, सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। फिर यू डू एक लॉ फर्म के साथ आप करें। लॉ फर्म के साथ इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि वो आपको थोड़े कॉर्पोरेट और टैक्स वाले ज़्यादा बेटर जो है वो फर्म स्ट्रक्चर में लोग होते हैं। देन एक टाइम आप क्रिमिनल एक्सपर्ट के साथ लगाएं, चैम्बर के साथ लगाएं, फिर एक आप सिविल के साथ लगाएं, ताकि यू गेट टू नो ये सब स्ट्रीम्स। सो व्हेन यू और फिर उसके बाद यू विल रियलाइज कि अच्छा आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू परस्यू और नॉट। और मे बी उसके बाद आपको लगे कि नहीं, मुझे इन चारों में से कुछ नहीं करना, आई डू CSS और जुडिशरी, दैट आई विल परस्यू। सो जो आपको नापसंद करना है, अपनी लिस्ट से निकालनी है कोई चीज़, तो उसके लिए आपको यू नीड टू नो दैट थिंग। देयर इज दिस लाइन फ्रॉम दिस
a movie called Key and Ka. Okay, so he used to hate the hero. अपने फादर से नफरत करता है बिकॉज ही इज लाइक एन MBA. सो उसमें करीना आस्क हिम कि तुमने क्या किया है, उसने भी MBA किया होता है, या माइन आई एम जस्ट फिनिशिंग इट अप, उसने भी MBA किया होता है. तो लाइक you just hate your father और फिर तुमने भी वही डिग्री की है that what he is like बिजनेस डिग्री की है. तो ही सेड कि किसी चीज को जानने के लिए कि वो अच्छी है या बुरी है, यू नीड टू नो दैट थिंग. सो जब मैंने MBA पढ़ा तो नाउ आई रियलाइज आई एक्चुअली हेट बिजनेस वाली स्टफ एंड प्रैक्टिसिंग बिजनेस. तो या यू हैव टू टेक थिंग्स आउट ऑफ योर लिस्ट ऑफ दैट पिक्चर. यू नीड टू नो कि उसमें क्या है क्या नहीं है, जस्ट टू बी श्योर कि कुछ साल बाद आप उसको रिग्रेट ना करें. या माहीन प्लीज. ओके, तो पार्टिसिपेंट्स की तरफ से एक और क्वेश्चन था कि इज इट एनफ दैट दिस सेशन इज can we start do you think like that this session is enough for us to start a career in taxation, or should we arrange another session for practical training like another course, or is it enough information which we are gaining right now? Farooq, you there? Yes, I just heard the question. अच्छा, इसमें very clearly I'll tell you something. Knowledge कभी भी enough नहीं होता. You have to gain more. You have to, obtain, procure knowledge. इवन कि मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ, जब आपके इनकम टैक्स की रिटर्न्स का सेशन आता है उससे पहले आपका बजट पास होता है. प्री बजट पोस्ट बजट डिस्कशंस होती हैं, वो डिफरेंट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को सामने लेके आती है. हर साल आपके जो FBR हैं उनके फाइनेंशियल लॉस, जिसे फाइनेंस एक्ट कहते हैं, वो हर साल चेंज होता है, जिसमें डिफरेंट चीज़ों को अमेंड किया जाता है या उनको थोड़ा सा सेट किया जाता है एज पर देयर रिक्वायरमेंट और अपनी फाइनेंशियल पॉलिसी के अकॉर्डिंगली. तो आप लोगों के लिए ये सेशन, आप एक इसे कह लें कि दैट इज very start to develop an understanding. So आप इसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, लेकिन टू मेक योर सेल्फ मोर acquainted with the current things, current practical aspects, finance act and other things. Sometimes they pass some SROs, they pass some circulars. वो आपको go through करने पड़ते हैं. ये सेशन आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में काफी मदद करेगा, लेकिन अगला काम आपका है. आपने वो अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन रखना है और उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना है. हर साल आपने गो थ्रू करना है फाइनेंस एक्ट को, हर साल आपने गो थ्रू करनी है अपने जो बजट है उसको, हर साल आपने प्री और पोस्ट बजट डिस्कशंस का हिस्सा बनना है. सबसे मुश्किल जो प्रैक्टिस है टैक्स और कॉर्पोरेट लॉ की क्यों है, वो इसीलिए है पाकिस्तान में स्पेसिफिकली कि हर साल आपका फाइनेंस एक्ट चेंज होता रहता है और हर साल वकीलों ने पढ़ना है उसे, हर साल उसको गो थ्रू करना है, हर साल उसके अंदर जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको उन्होंने लेके चलना है. तो मेरे नज़दीक वही मैं आपको कट द लॉन्ग शॉर्ट इज you are able to develop your understanding with those things, टैक्स और कॉर्पोरेट वाली चीज़ें, बट आपने हर साल उसको अपडेट खुद करना है, हर साल उसको लेके खुद चलना है. वो सारी बात है. वी आर इंस्ट्रक्टर्स, आप हमें कभी अप्रोच करेंगे किसी चीज़ के लेके ये करते हैं, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट गाइस. लेकिन अल्टीमेटली प्राइमरीली ड्यूटी आपकी है, आप लोगों ने अपने आप को अपडेट रखना है. आई होप इट हेल्प्स. All right. Thank you, sir, for your insightful opinion. Sir, my next question is कि if being a private company, एक private company जो है वो online जो है वो एक AGM conduct कर लेती है, annual general meeting conduct कर लेती है, and they just pass out the resolution कि एक shareholder को की post से हटा दिया जाए. So being a lawyer of that shareholder, what is their first step? राइट, ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन किसने पूछा है.
I appreciate that person. I'm 110% sure he might be practicing some. He must have gone through this query. कहीं ना कहीं पे उसको practice में ही पता चली होगी. अच्छा, normally मैं आपको अपनी example देता हूँ. I mostly do work with foreign companies इनके पाकिस्तान में offices हैं, वो पाकिस्तान में register हुई होती हैं. Recently ऐसा ही case हमारे पास था. लेकिन उस सिनारियो में I was not the counsel, not the lawyer for the shareholder, I was lawyer for the company. Similar situation थी, ऑनलाइन सब कुछ हुआ है. हमने जो रेजोल्यूशन थी उसके अंदर इवेंट की मीटिंग का लिंक प्रोड्यूस कर दिया, उसमें रिकॉर्डिंग साथ अटैच कर दी. वी वर वेरी स्मार्ट टू कंपाइल ऑल द थिंग्स. नाउ अब उसके अंदर अब मैं अपने आप को पोजीशन करूं शेयर होल्डर का, अगर मैं उसमें अपने आप को बनाता हूं लॉयर, इफ आई प्लेस माई सेल्फ देयर, आपका शेयर होल्डिंग का रजिस्टर होता है. फॉर्म ए के अंदर शेयर होल्डर सारे के सारे होते हैं, फॉर्म 3 भी होता है उसके अंदर. लेकिन मोस्टली हम इसको फॉर्म ए में देखते हैं कि फॉर्म ए में कितने शेयर होल्डर्स हैं, शेयर्स कितने हैं, कब से हैं, दिस काइंड ऑफ स्टफ. जो कंपनीज प्रॉपरली काम कर रही हैं वो रजिस्टर भी मेंटेन करती हैं. शेयर होल्डिंग रजिस्टर होता है. वो शेयर होल्डिंग रजिस्टर में आपका शेयर नंबर, फोलियो नंबर, आपने कब उसको ट्रांसफर किया, शेयर्स की ईच एंड एवरी, जिसे कहते हैं ना कि वो निटी ग्रेटीज को डील कर रहा होता है. अब वहां पे उस शेयर होल्डर को अगर फोर्सफुली वहां से निकाला गया है, दे हैव अ राइट टू फाइल सिविल कंपनीज ओरिजिनल सूट, सॉरी सिविल कह रहा हूँ, कंपनीज ओरिजिनल सूट. इसे कहते हैं रेटिफिकेशन ऑफ शेयर होल्डर्स रजिस्टर. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स 126 ऑफ कंपनीज एक्ट. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इकरा प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. सो इसमें मैं अपना एक छोटा सा आंसर बता देती हूँ. एक तो एज पर कंपनीज एक्ट 135 आप ऑनलाइन कर सकते हैं डेफिनेटली अपनी मीटिंग. एंड डायरेक्टर को हमने पास कर दिया रेजोल्यूशन कि डायरेक्टर को हटा दिया जाएगा. डायरेक्टर को हटाया जा सकता है, शेयर होल्डर का राइट था. अगर आप शेयर होल्डर के लॉयर हैं तो शेयर ऑल्सो द सिनेरियो, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, द सिनेरियो इज कि एक कंपनी है, उसने अपनी ऑनलाइन मीटिंग होल्ड किए. एजीएम इज द मीटिंग जो मेंबर्स कंडक्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स कंडक्ट करते हैं. उस मीटिंग में उन्होंने वन ऑफ द डायरेक्टर को रिमूव कर दिया. दे कैन 2/3 की मेजोरिटी से दे कैन. सो इसमें टेक्निकली शेयर होल्डर का लॉयर नहीं लगेगा, इसमें डायरेक्टर का लॉयर लगेगा जो डिफेंड करेगा. इवन इन केस डायरेक्टर का भी लॉयर हो, वो डिफेंड आई डोंट नो किस बेसिस पे करेगा. वो अपनी सैलरी वगैरह तो क्लेम कर सकता है, बट ही कैन नॉट क्लेम कि मुझे वापस डायरेक्टरशिप मेरी होल्ड वापस से रिस्टोर की जा सके, क्योंकि दिस इज द राइट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी सॉरी ऑफ द शेयर होल्डर्स कि वो किसको डायरेक्टर रखना चाहते हैं और किसको नहीं रखना चाहते. दे जस्ट नीड 2/3 ऑफ मेजोरिटी टू पास दैट रेजोल्यूशन. Should I move toward next question, ma'am? Yeah, sure. So, ma'am, this question is for you, that if a group of companies artificially make 3 subsidiaries, अगर वो 3 subsidiaries जो है वो एक parent company जो है वो 3 subsidiaries बनाता है, और ताकि उनके ऊपर से जो टैक्स की लायबिलिटी है वो कम हो जाए, but FBR just notice to the parent company कि we will lift the veil of incorporation. So being a tax advisor of a parent company, कौन सा strong defense हम use कर सकते हैं उनके against? Okay, I was seeing that coming. मैंने पढ़ा था सवाल. This is interesting, but we need to see the legality first. As a lawyer, remember the first question you need to raise is always legality. The question, जो एक्शन लिया गया है वो लीगल भी था या नहीं, ठीक था या नहीं, या वो उसमें किसी का राइट इन्फ्रिंज हुआ या नहीं हुआ, वो तो बाद में डिस्कस हुआ. वो लीगल था या नहीं. FBR, अगर मैं लॉयर हूँ कंपनी की, हाँ ऑफ कोर्स मैं कंपनी की लॉयर हूँ, एक तो पहले मैं हेफ्टी अमाउंट चार्ज करने वाली हूँ
क्योंकि 3 सब्सिडरीज बनाई हुई हैं उन्होंने। और फिर मैं एफबीआर को सबसे पहले ये क्लेम करने वाली हूँ कि आप मुझे लीगल बेसिस बताएं। जब कंपनी बनाई ही इसीलिए, कंपनी का कॉन्सेप्ट यही है कि आपका वेल होगा, कॉर्पोरेट वेल होगा, आपकी अलग स्टैंडिंग होगी। सो हाउ कैन यू से दैट कि आप वो वेल लिफ्ट कर रहे हैं, अनलेस के कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो, जो कि एफबीआर के पास तो नहीं हो सकता। उसका मकसद है कि उसने सिर्फ टैक्स को अपना टैक्स मैटर्स को देखने, रेवेन्यू को देखने। अनलेस एंड अनटिल टैक्स रिटर्न्स रेवेन्यू अफेक्ट कंपनी का कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं हो रही, दे कैन नॉट। सो एज अ लॉयर ऑफ द कंपनी मैं डिफेंस उनकी लीगैलिटी पे करूंगी। द एक्शन इज वॉइड। वायरीज अगर जिस लॉ के अंडर की है तो मैं उसकी वायरीज भी चैलेंज कर लूंगी, बट या आई विल डू दैट। बट एक चीज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अगर कोई बहुत सारी कंपनीज, द क्वेश्चन इज वैलिड और इंटरेस्टिंग। मैंने इसको इसलिए कहा था क्योंकि कंपनीज सब्सिडरीज बनाती है इसीलिए ताकि वो टैक्स से थोड़ा अपना बच सकें, अपना रेवेन्यू बचा सके। एंड ये कोई गलत बात नहीं है। आई एम फॉरगेटिंग दैट वो फ्रेज दैट इज बीइंग यूज्ड, और जो हमें टैक्स या पढ़ाई जाती थी, टैक्स इवेजन इज अ क्राइम बट टैक्स अवॉइडेंस इज नॉट अ क्राइम, इस तरह की कोई चीज होती थी। द एग्जाम्पल वॉज कि अगर गवर्नमेंट ने 1 लाख के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है कि अगर आपका 1 लाख का अमाउंट है जिसपे आप ट्रांजेक्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर 10% का टैक्स होगा, और वो मैं 1 लाख का ट्रांजेक्शन करती हूँ और मैं 10% टैक्स नहीं करती, तो फिर आई एम लाइबल फॉर the penal action that is there in the ordinance or the act or the legislation. But अगर मैं 1 लाख की ट्रांजेक्शन करने की जगह 50-50 हजार की 2 ट्रांजेक्शन कर दूंगी, तब मैं पीनल एक्शन के लिए लाइबल नहीं होंगी, क्योंकि मैंने टैक्स इवेजन नहीं की, मैंने बस उसको स्मार्टली यूज किया है। आई डू नीड Farooq's input ke whether I am right or wrong, but yeah, this is what I have like been taught. So अगर कंपनीज इस तरह सब्सिडरीज बनाती हैं अपने आप को टैक्स लाइबिलिटी से बचाने के लिए, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। All right. Thank you. This is much a brightful opinion for us. Sir, this is the last question for you. Uh, Kindly suggest other courses which help us to gain much and deeply knowledge about taxation and corporate finances. इस तरह के कोई courses आप हमें guide करें जिससे हम जो है वो expert हो सकें इसमें. Right. Acha, what if I tell you कि don't go for courses? This is the one and only course you have to do to develop your understanding with the things. ठीक है? What if I tell you this is a game of skill? You can enhance your skill by the work, by practice, by getting more insight from YouTube tutorials. उसके अलावा जब आप किसी प्रैक्टिस वाली साइट पे आते हैं, फॉर एग्जांपल यू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट फॉर टैक्स रिटर्न, आपको कहते हैं कि जी मैंने टैक्स रिटर्न फाइल करवानी है, दैट इज द डे जब आपका कोर्स होना शुरू हुआ है, एंड इट विल लास्ट टिल योर लास्ट डे, टिल योर लास्ट मिनट, ये चलता रहेगा अनलेस अनटिल अगर आप प्रैक्टिस छोड़ के और चले जाते हैं तो कोई कोर्स करने की आपको जरूरत नहीं। यस, आई विल सजेस्ट यू वन सिंगल कोर्स। अगर आप लोगों ने टैक्स को ही लेके चलना है, आपने इफ यू आर गुड विद नंबर्स, you should go for BCom, you should go for CA, ACCA, ACMA. These are the courses which you can, करके आप equal insight gain कर सकते हैं, लेकिन still, अच्छा, I'll tell you something very strange. I have a clerk with me that is accountant, और वो accountant साहब मेरे वालिद साहब के साथ काम करते थे, मतलब उनको 40-50 साल कहीं नहीं गए टैक्स के काम करते हुए। वो बंदा मैट्रिक पास है और वो पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छे रिटर्न फाइल करता है, और उसने कोई कोर्स नहीं किया हुआ। दैट इज अ गेम ऑफ एक्सपीरियंस, दैट इज अ गेम ऑफ स्किल, दैट इज अ गेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हिच इट डेवलप्ड। आपको किसी कोर्स की जरूरत नहीं है। जो लॉ आ रहा है आप उसको स्टडी कर लें, जो उसके अमेंडमेंट आ रही है स्टडी कर लें, अपना स्किल
क्रेडिट और डेबिट के मैं इसको ऐसे ही कहता हूँ कि आपने क्रेडिट और डेबिट की गेम अपनी अच्छी करनी है। आपका मैथ थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। आप अपना फाइनेंस एक्ट पढ़ें, कोई एग्जाम्पशंस आती हैं, कोई उसके अंदर आपके टैक्स की कमी पेशी आती है, दैट इज इनफ फॉर यू गाइस। बाकी किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वो अगर आप पढ़ते रहेंगे चीजों को तो दैट विल हेल्प यू मोर। और आपके पास अगर प्रैक्टिकली आप जिस चैम्बर में जा रहे हैं आपको काम हो दे रहा है करने के लिए, आप वहां पे अपना हाथ सीधा करें। किसी और कोर्स की जरूरत नहीं है, दैट इज माय ओपिनियन। हो सकता है कि किसी को मजीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कोई कोर्स वगैरह करना पड़ जाए, बट आई सजेस्ट यू कि rather गोइंग फॉर अ कोर्स यू शुड ज्वाइन अ गुड सीनियर, अ गुड लॉयर जो कि उस फील्ड के अंदर आपको प्रैक्टिकलिटीज के ऊपर लेके चले, लीगलिटीज के ऊपर लेके चले, रादर देन आपको किसी और साइड पे उसने जो है वो किया हो, कैलकुलेशंस पे लगाया हो। आपको वो लॉ और प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर लेके चले, किसी कोर्स की जरूरत नहीं है। दैट इज माय ओपिनियन। आई माइट बी रॉन्ग, अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो आई विल बी हैप्पी इफ यू गाइस करेक्ट मी। इसमें आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग दैट अगर हम नॉर्मल लॉ की फील्ड्स को लेके चले, विच इज फैमिली, कंसल्टेंसी, क्रिमिनल, सिविल, आई एग्री विद यू, बट जो कुछ जिसको हम कहते हैं नीश एरियाज है, which is merger, corporate, not corporate, regtech, fintech, I would suggest to do certain courses not from legal perspective but to understand what these things are. For example, मैं example दे रही थी कि today I had to be there at LUMS का leadership summit on blockchain, which is directly connected to after Pivara ordinance regtech. So उसमें पूरा प्रॉब्लम ही यही है दैट आई स्टिल डोंट नो हाउ दैट ऑल ब्लॉकचेन की चीज वर्क। आई डोंट नो। मुझे ये पता है कि वो ब्लॉक कैसे बनता है, मुझे कैसे पता है वो चेनिंग कैसे होती है, मुझे ये भी पता है कि क्रिप्टोग्राफी कैसे होती है, मुझे ये नहीं, बट स्टिल आई डोंट नो कि वो पूरा स्ट्रक्चर जब एक साथ आता है तो वो कैसे काम करता है। फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, एंड दैट इज अ नीश मार्केट जो अभी डेवलप हो रही है। अगर आप उसमें आज का अपने आप को लर्निंग अब उसमें लर्निंग स्टार्ट करेंगे तो बाय द टाइम देयर विल बी अ डिमांड ऑफ लॉयर्स इन दैट एरिया, यू विल ऑलरेडी बी देयर। कोई उनको रैंडम बाहर से एक्सपर्ट बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम इज विद द फिनटेक। 2-3 साल पहले वी केम अक्रॉस दिस प्रॉब्लम कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल और टेक प्लस कंपनीज जो मर्ज है, दे आर एक्सप्लॉइटिंग देयर कस्टमर्स, एंड एससीपी को नहीं आइडिया था कि अब हम इसको कैसे डील करें। हम उनको वी हैड एन आइडिया बट वी वर नॉट रेगुलेटिंग देम। फिर वी केम, हमने सेक्टर को बिठाया, फिर हमने ये किया कि वो जो बंदा एक काम कर सकता था जिसको फाइनेंशियल और टेक और लॉ तीनों की समझ होती, उसके लिए हमें पूरे स्टेक होल्डर्स को बिठाना पड़ा। तो एग्जैक्ट पॉलिसी, फाइनेंस, लॉ, टेक को बिठा के हमें देखना पड़ा कि हम इसको कैसे कैटर कर सकते हैं। फिर वो जो गूगल वगैरह के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, दैट इज वो फिर उसका रिजल्ट निकला। देन वी केम अक्रॉस दिस डिसीजन कि ओके कोई भी ऐप गूगल पे लिस्ट नहीं होगा अनलेस वो अप्रूव नहीं है, वो ये नहीं है, वो नहीं है। पूरी उसकी पॉलिसी गाइडलाइंस बनी। सो व्हेन जहाँ पे लॉ की बात है, हाँ आपकी डिग्री इज सफिशिएंट, बट जब आप दो चीज़ों को मर्ज करेंगे, फिनटेक फॉर एग्जांपल को करेंगे, रेगटेक को करेंगे, बैंकिंग लॉ को करेंगे, सो यू डू नीड अ बिट ऑफ एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपको थ्योरी जो आपने नहीं पढ़ी होगी। So उन cases में please do get to know those things before वो आपके एरिया से बाहर चले जाए। All right. Thank you so much, ma'am. Sir, Sir Farooq, I have a question to you. Yes, please. Can you please just guide the important steps we need to perform after passing the GAT exam? Like GAT के बाद, GAT के बाद, लाइसेंस लेने के बाद हमें प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए या फिर हमें अपने सेमेस्टर की ड्यूरेशन में ही स्टार्ट कर लेनी चाहिए? और अगर हम अपने सेमेस्टर के ड्यूरेशन में स्टार्ट करना चाहें तो कौन सा सेमेस्टर हमारे लिए बेस्ट रहेगा जिसमें हम प्रॉपरली नॉलेज भी हासिल कर सकें?
Right. Acha, Mahin, that is very interesting and very frequently asked question. It's been 10 years I'm practicing, and every year I used to, invite interns on 3 or 4 slots in our firm. और वो mostly होते हैं उनको at least जिस field में वो आ रहे हैं they should have gone through that law in their law school. अब कुछ लोगों की practice मतलब the time they are studying in law school वहाँ पे उनका aptitude develop हो जाता है. For example, when I was in law school, मेरा कॉर्पोरेट और मेडिकल नेग्लिजेंस उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था. तो चूंकि कॉर्पोरेट लॉ मैंने पढ़ लिया हुआ था, तो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग विद द लॉ फर्म एज अ इंटर्न. आई स्टार्टेड इंटर्नशिप समवेयर. एक एक्सवाईजी कंपनी थी, दैट इज पाकिस्तान बनने से तकरीबन कोई वो 50-60 years पुरानी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम की बेसिकली वो ऑडिट कंपनी थी. तो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग देयर, और मुझे वहाँ पे एक चीज समझ आई थी कि आपने जिस चीज में अपना एप्टीट्यूड डेवलप करना है वो लॉ स्कूल में करना है. चेम्बर्स में बैठ के, इंटर्नशिप्स में, एसोसिएटशिप में आपने उस चीज को जिसे हम कहते हैं ना उर्दू में पुख्ता करना है. आपने उसको जरा स्ट्रेंथन करना है उस स्किल को. मैं यही कहूँगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इफ दे आर इंटरेस्टेड इन क्रिमिनल लॉ, वो 2 पार्ट 3 पार्ट 4, आई डोंट नो किस ईयर में किस सेमेस्टर में पढ़ा रहे हैं. राइट आफ्टर द सेमेस्टर, वो जो सेमेस्टर ब्रेक होता है उसमें 10-15 दिन की इंटर्नशिप करें, रिलेवेंट लॉ जो भी उनका वो जिसमें उनका एप्टीट्यूड डेवलप हो रहा है. अगर उन्होंने कॉर्पोरेट लॉ के अंदर आना है, दे शुड गो थ्रू द कॉमर्स वाला जो उनका बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से चलता है टैक्स, बेसिकली है क्या. कॉर्पोरेट वाले बंदे हैं उनका भी इसी तरह से दे शुड डेवलप द एप्टीट्यूड. और साथ साथ वो 15 दिन 20 दिन की जो समर प्लेसमेंट्स होती हैं, इंटर्नशिप्स होती हैं, वहाँ पे जाके इस चीज़ को एक दफ़ा देख लें. क्योंकि द मोमेंट जब आपको लाइसेंस मिल जाता है आपके लॉ गेट के बाद, आप मतलब द मोमेंट यू गेट योर लाइसेंस, तो उसके बाद आपका वो फाइनल डिसीजन था कि मैंने इस फील्ड के अलावा कोई और चीज़ ट्राई नहीं करनी. अक्सर औकात होता ये है कि लोग एडवेंचर करते होते हैं, अक्सर औकात अपना एरिया ऑफ प्रैक्टिस चेंज कर लेते हैं, लेकिन वो एडवेंचर अक्सर औकात उनके लिए कॉमेडी बन जाता है. वो उस चीज़ में इतने अच्छे नहीं होते. अक्सर औकात कुछ लोगों का वो चेंज ऑफ करियर होता है, चेंज ऑफ फील्ड होता है, चेंज ऑफ एरिया होता है, वो उनको सूट कर जाता है. लेकिन दैट थिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम योर लॉ स्कूल. आपका फॉर एग्जांपल 3rd सेमेस्टर है या 4th सेमेस्टर है जिसमें आपने कॉर्पोरेट लॉ को पढ़ा है, तो उस सेमेस्टर के बाद वाली जो आपका एक समर प्लेसमेंट वाला, आप जाहिर बात है आपकी सेमेस्टर ब्रेक सबको होती है, तो उसके 15-20 दिन की होंगी, उसमें आप जाके उस फील्ड को एक दफ़ा देख लें. दैट इज हाउ आजकल के जो इंटर्न्स हैं, आजकल के लॉ स्टूडेंट्स हैं, वो चल रहे हैं. वो हर एक चीज़ का थोड़ा थोड़ा टेस्ट ले लेते हैं. जो चीज़ उनको अच्छी, उनको जैसे कहते हैं कि स्लाइटली बेटर पेइंग अपॉर्चुनिटी लगती है, वो उस प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर लेते हैं. आई होप इट हेल्प्स. Yes, sir. Thank you so much for your answer, and thank you so much for Ma'am Ikra and Sir Farooq for joining us. And that's how there's an end to this session. और जहाँ तक है ये 6 week to 7 week का हमारा सेशन रहा था, और सबने बहुत कुछ सीखने को मिला, और हमें स्पेशल डीएम्स आते रहे हैं सर फारूक आपके सेशन के एवरीवन कॉम्प्लीमेंटेड यू अलॉट. उनको आपका सेशन बहुत अच्छा लगा जो आपने स्टार्ट में भी किया था, और मैम इकरा का भी बहुत अच्छा लगा. तो आई वुड जस्ट पर्सनली लाइक टू थैंक यू ऑल, एंड ऑल्सो ऑन द बिहाफ ऑफ PLSA दैट यू गाइज हैव बिन रियली ग्रेट. तो हमारा 6 days का और 7 days का चला है सेशन. और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस. आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला हो PLSA से भी, और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग इस तरह के सेशंस करवाते रहेंगे, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करना. और थैंक यू सो मच मैम इकरा, एंड थैंक यू सो मच सर फारूक. सो अल्लाह हाफिज़. दैट्स हाउ द सेशन है.